to highlight a few things about the eminent legend of India. Swami Vivekananda birth anniversary. Today we are commemorating as the National Youth Day. Why National Youth Day? Swami Vivekananda immensely believed that it is the youth who can change, give direction, perspective and motivate and gear up the nation towards the forthcoming objectives that are to be achieved. Swami Vivekananda, with the help of great Raja Ramananda, who was highly inspired by the ideology of the saint, given him an opportunity, placed all the arrangements for the World Religion Parliament, which was held in Chicago in the year 1893. It was an immense stage for any person to go up and speak about. An Indian, and at that period of time, Indians were considered to be below, uneducated, having no perspective about religion. When he got the opportunity, he highlighted Indian Vedas, ideology, starting up with his idea from zero and narrated how zero is important in our life. His ideas were mainly formulated on two bases: tolerance and universal brotherhood. He started off his speech by saying, "My brothers and sisters of America." This statement itself means that he never believed in any boundaries, whether it is country, caste, religion. He believed in universal brotherhood. And he formulated the old age religion whose foundations were laying on the Vedas. He said that Vedas are the way of living of life, which we have to observe till today. In many of the Western countries, even in present era, people are focusing and having deep research whatever the discoveries our great ancestors have formulated during that time. Here, as a teacher, we are having the immense job to perform. We are the one who are going to mold out the youth of the nation. And with this perspective, looking forward towards the ideology of Swami Vivekananda, I am here to say that we try to follow whatever the ideas, thoughts have been narrated by the eminent person and try to mold the upcoming generation, youth of the nation, so that our nation can go forward and achieve the heights in each and every field. जय हिंद। स्फूर्ति से परिपूरित, प्रण प्राण से करे राष्ट्र का उद्धार, नव निर्माण नव सृजन की हो असीम प्रवृत्ति, ऐसी हो युवा शक्ति। आदरणीय प्राचार्य जी, उप प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं साथियों, 11 सितंबर 1893 को शिकागो धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की विजय पताका फहराने वाले महामनीषी, क्रांति के चिर उद्घोषक स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महज 39 वर्ष की छोटी आयु में ही उस युवा सन्यासी ने इस अखंड आर्यावृत्त के युवाओं की असीमित ऊर्जा का आह्वान करते हुए राष्ट्र सेवा का संदेश दिया। उन्होंने कहा, हे युवा, जाग कि तेरे जागने से देश जगेगा और हर क्षेत्र में विकास करेगा। भ्रष्टाचार और दुराचार का अंधियारा छटेगा। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सूरज सारे संसार को आलोकित करेगा। हर क्षेत्र में भारत सबकी अगुवाई करेगा। भारत की असल शक्ति युवाओं में है। इसी युवा को समर्पित है मेरी कविता युवा शक्ति। तुम राज्य हो, तुम राष्ट्र हो, तुम युवा हो, तुम शक्ति हो, तुम जन जन हो, तुम कण कण हो, तुम संतरी हो, तुम मंत्री हो, प्रगति के उपासक हो, उन्नति की एक धारा हो, आर्य धरा पर जड़ भी तुम हो और भविष्य का फल भी तुम हो। तुम ही संस्कृति, तुम ही सभ्यता, तुम ही अलौकिक दीप हो। भटके जो राह से यदि भ्रष्टाचार, दुराचार और अंधकार हो। तुमने सिकंदर को लौटाया, गजनी को कई बार हराया, गौरी तुमसे ही मात खाया। गोरे जिससे डरे तुम ही वो बोस हो,
तुम दशमलव, तुम शून्य, तुम टैगोर, तुम रमन, तुम ही विवेकानंद हो। तुम शिवाजी महाराज, तुम राणा प्रताप, तुम ही सुखदेव राजगुरु भगत हो। तुम कलाम की मिसाइल हो, तुम दिनकर की हुंकार हो, तुम अटल सत्य हो पोखरण का, तुम कारगिल विजय हो। देशभक्ति के भाव लिए जब अपनी मुट्ठी एक करते हो, दुश्मन की सांसें जकड़ती उसके लिए तुम महाकाल हो। युवा निर्णायक राष्ट्र क्रांति के, मिलकर तिरंगे की शान गढ़े। युवा शक्ति है राष्ट्र गौरव के, दृढ़ संकल्पित स्वाभिमान रचे। धरती से अंबर तक लाली, युवा शक्ति हो शक्तिशाली। खंड खंड नहीं कर सकता कोई, तुम अखंड भारत हो। इसीलिए हे चिर युवा तुम उठो, पथ भ्रष्ट लक्ष्य विहीन होकर न स्व यौवन संहार करो। दीनहीन संस्कार क्षीण, अब तुम संस्कारित युग संचार करो। जड़ अचेतन हो चुका जग, तुम नव चेतन विस्तार करो। नवयुग का निर्माण करो, नव भारत का निर्माण करो, नव भारत का निर्माण करो। धन्यवाद। मेरे सभी शिक्षक साथी, आज का ये दिन विशेष अवसर लेकर आया है हम सभी लोगों के लिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम भारत में मना ही रहे हैं इसको, और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भी इसको दिया गया है। स्वामी विवेकानंद एक व्यक्ति के साथ साथ एक विचार भी है। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो की धर्म सभा में शामिल होने जा रहे थे तो उसका एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, वो मैं पहले बता दूं आपको कि वो एक ट्रेन में जा रहे थे और ट्रेन में उनके साथ में कुछ अंग्रेज भी बैठे हुए थे। तो उनके पास एक किताब, तो स्वामी जी ने वो किताब उनसे ले ली पढ़ने के लिए कि जब तक सफ़र चल रहा है सफ़र कटेगा। और किताब लेने के बाद वो किताब पढ़ने लगे और जब स्टेशन आया तो वो किताब लेकर उतर गए। तो जिस सज्जन ने उनको वो किताब दी थी तो उसने कहा कि भाई किताब मेरी है, मुझे वापस दीजिए। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि भाई किताब आपकी है तो बताइए कैसे आप कहेंगे कि आपकी किताब है, ये किताब तो मेरी। तो सामने वाले अंग्रेज ने कहा कि भाई आप सबूत दीजिए कि किताब आपकी कैसे है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने किताब उनके सामने रख दी और पूछा कि बताइए आप किसी भी पेज का नंबर मुझसे पूछ लीजिए, वो बताए तो उस पेज पर क्या लिखा होगा। और सरप्राइजिंगली उस अंग्रेज ने पेज पलटाकर पूछा भी कि पेज नंबर 97 पर थर्ड लाइन में थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने एज इट इज बता दिया। तो दैट वाज द मेमोरी ऑफ दैट पर्सन। उस समय के जो लोग थे उनका जिस तरह से जीवन शैली थी और शिक्षा को जिस तरह से उस समय ग्रहण किया जाता था, उस समय जो मेमोरी पावर है वो इतनी हाई हुआ। तो काफ़ी सरप्राइजिंग भी रहे वो लोग। और फिर बाद में उन्हीं लोगों ने फिर स्वामी जी को हेल्प की, कैसे उनको शिकागो धर्म सम्मेलन में एंट्री मिले और वहाँ पर जाकर फिर उन्होंने अपने धर्म से संबंधित और अंतर्राष्ट्रीय विश्व के धर्म से संबंधित कई सारे विचार प्रकट किए। एक उनका और किस्सा जो बचपन का काफ़ी फेमस है, वो बचपन में काफ़ी बलिष्ठ हुआ। 7-8 साल की उम्र में जो है उनका शरीर ऐसा था जैसे किसी बड़े आदमी का शरीर। तो उनकी माँ उनसे कहा करती थी कि बेटा हमारे गांव में जो बरगद का पेड़ है, इस बरगद के पेड़ पर आप रात के समय मत जाया करो, यहाँ पर भूत रहता है। सब बच्चे डरते भी थे उस बरगद के पेड़ के भूत के नाम से, कोई जाता भी नहीं रात के समय खासकर। तो एक दिन इनके दिमाग में बैठ गया कि आज तो भूत जाकर देखूंगा कैसा होता है। और रात के समय किसी को बताए बिना चुपचाप ये उस बरगद के पेड़ पर जाकर बैठ गए। रात भर बैठे, ये आएगा भूत, देखेंगे कैसा होता है भूत। सुबह जब लोगों ने देखा कि ये तो ऊपर बैठे हुए हैं बरगद के पेड़ पर, फिर उनको उतारा और जब पूछा भाई क्या कर रहे थे आप, तो बोले मैं रात भर से बैठा हुआ था, यहाँ इंतजार कर रहा था भूत है कि नहीं, मुझे कोई भूत नहीं मिला। तो ये उनका साहस का परिचय देता है और ये साहस भी कहीं ना कहीं शिक्षा से ही आता है। तो स्वामी जी ने शिक्षा के बारे में बताया हुआ है कि शिक्षा जो है ये ग्रहण करने वाली चीज नहीं, ये तो सीधी सी चीज है जो आपके आसपास में मौजूद है, आपको तो बस केवल उसको पहचानना है। आप शिक्षा का आविष्कार नहीं कर रहे हो, शिक्षा तो पहले से ही है, नॉलेज तो पहले से ही है। आपको केवल बताना है कि ये नॉलेज है, नॉलेज आपका आविष्कार करेगा।
तो इस तरह से धर्म से संबंधित और शिक्षा से संबंधित उनके कई सारे विचार हैं, और उन विचारों पर आगे और मैं अपने विचार प्रकट करूंगा। इसमें कुछ विचार मेरे पास है जो काफी फेमस भी है उनके, कि एक है उनका, पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, और एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये उनकी एकाग्रता का परिचय था, जिसमें उन्होंने बता दिया कि भाई आप किसी भी किताब के पेज को खोल के बता दो, मैं बता दूंगा कि इस पर क्या लिखा हुआ है। उस रेल के सफर में उन्होंने इतनी मोटी जो उपन्यास था उसको पूरा एज इट इज पढ़ लिया था और याद कर लिया। फिर एक जो बड़ा पॉपुलर है उनका, कि जागो और उठो और जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। तो ये अपने डेडिकेशन का परिचय देते हुए बता रहे हैं स्वामी जी कि जो आपने एक बार निश्चय कर लिया है, तो जब तक आप उस निश्चय पर पहुंच नहीं जाते, उसके परिणाम तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको रुकना नहीं है, प्रयास निरंतर जारी रहना चाहिए। फिर एक और है उनका, कि जब तक जीना है तब तक सीखना है, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। तो जब तक जीना है तब तक सीखना है, मतलब ये है कि सीखने की कोई उम्र नहीं, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। जहां पर जाओ, जिस समय जाओ, जहां चाहो आप सीख सकते हो, जिससे चाहो उससे सीख सकते हो। कोई बड़ा छोटा या कोई भेदभाव इसमें नहीं है, सीखने में कोई भेदभाव नहीं। तो उनके जो गुरुजी हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस, तो शुरुआत में उन्होंने काफी उनका प्रचार सुना था कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस बड़े फेमस है। कलकत्ता में काली माता का मंदिर है जिसमें वो सेवा करते थे। तो कई लोगों से उन्होंने सुना था कि इनको जो है अपने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को भगवान नजर आते हैं। तो ये स्वामी जी जाते थे उनके सेवा में और उनको पूछा करते थे कि बताइए क्या आपने माता को देखा है, भगवान को देखा है? तो वो बोलते थे मैं बाद में बताऊंगा। एक बार जब बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने लगे स्वामी जी, तब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने बताया कि मैंने कालका माता को उसी तरह से देखा हुआ है जैसे मैं आपको देखा, आमने सामने देखा हुआ है। अब इस तरह के किस्से उन्होंने कई और दूसरे संतों से भी सुने हुए थे, लेकिन वो ठीक से बता नहीं पाए। तो यहाँ पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जब बता दिया कि मैं जिस तरह से आपको देख पा रहा हूँ, आपके हाथ देख पा रहा हूँ, आपके हाथ देख पा रहा हूँ, आपके सिर को देख पा रहा हूँ, आपके शरीर को देख पा रहा हूँ, इसी तरह से मैंने माता को देखा हुआ, भगवान को देखा हुआ। फिर और उन्होंने कई और गूढ़ रहस्य भी बताए, तो उससे वो काफी प्रभावित हुए और उसके बाद से फिर उन्होंने संसार का त्याग करके और पूरी तरह से स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बनकर उनकी जो शिक्षा है उनका प्रचार प्रसार शुरू किया। तो उनके कार्य में कभी भी उन्होंने अपने स्वयं के शरीर की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्हें जो काम करना था वो करना था। इस चक्कर में ये हो गया कि उनका शरीर धीरे धीरे कई सारी बीमारियों से ग्रस्त हो गया और वो किसी एक जगह पर टिकते भी नहीं। अमेरिका जा रहे हैं, फिर वापस लौट कर इंडिया आ रहे हैं, इंडिया में भी कई जगह पर उनका भ्रमण चलता रहता। तो इस आपाधापी में अपने शरीर का वो ध्यान नहीं रख पाया और उनको कई तरह के रोगों ने घेर लिया और उन्हीं रोगों के कारण उनका अंत हुआ, और जो काफी युवा अवस्था में हुआ, 39 साल 39 ईयर्स। कोई बहुत बड़ा जीवन नहीं होता, लेकिन इस बहुत छोटे से जीवन में उन्होंने कई सारे ऐसे आयाम विकसित किए हैं जिसका आज हम अनुसरण कर रहे हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम अपने बच्चों को भी इनका उदाहरण देकर प्रेरणा देते रहते हैं कि आप इनकी तरह बनिए। खैर मैं अभी इतना ही कहना चाहूंगा, इसके अलावा और हमारे आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सही सादर नमस्कार। मैं भास्कर सालवी कक्षा 12वीं कला वर्ग का छात्र आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की 158वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस पर अपने विचार लेकर उपस्थित हूँ। भारत देश की अधिकतर आबादी युवाओं की और किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं पर ही निर्भर करता है। नई प्रतिभा के आने से देश को न सिर्फ तरक्की मिलती है बल्कि देश का विकास भी सही तरह से होता है। वही देश के युवाओं के सही मार्गदर्शन के लिए हर साल भारत में युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का नाम उनके माता पिता द्वारा नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया था। सन 1863 कोलकाता शहर के एक धनी परिवार में जन्मे विवेकानंद के गुरु का नाम श्री रामकृष्ण था। अपने गुरु से ही विवेकानंद जी ने आध्यात्मिक शिक्षा हासिल की थी और दुनिया भर में हिंदुत्व
किया और अपने गुरु के विचारों को फैलाया था। साल 1893 में उनके द्वारा अमेरिका में आयोजित हुए विश्व संसद में दिए गए भाषण को आज भी लोगों ने याद रखा हुआ है। अपने भाषण में उन्होंने भारत, हिंदू धर्म और उनके गुरु श्री रामकृष्ण के विचारों को दुनिया के सामने रखा था। विवेकानंद जी ने अपने जीवन काल में दुनिया के कई देशों का दौरा किया था और दुनिया भर में योग और वेदांत की प्रचलित किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पश्चिम संस्कृति और भारत संस्कृति के बीच जो दूरी थी उसको भी कम करने के लिए काफी योगदान दिया है। विवेकानंद जी के अनुसार व्यक्ति को तब तक मेहनत करनी चाहिए जब तक वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, और अगर कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी लगन और मेहनत करेगा तो वो जरूर कामयाब होगा। विवेकानंद जी के विचार थे कि मनुष्य का संघर्ष जितना कठिन होगा उसकी जीत भी उतनी बड़ी होगी। यानी किसी भी चीज को पाने के लिए हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है, और जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा उतना बड़ा आपका संघर्ष। हर युवा के पास ताकत होती है कि वो अपने आने वाले कल को अच्छा बना सके। युवाओं द्वारा मेहनत या पढ़ाई की जाती है तो उसके भविष्य में जाकर उसे फल देती है। अगर कोई कार्य करते हुए आपसे कुछ गलत हो जाता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए हैं, बल्कि इन गलतियों से का मतलब ये है कि आप कुछ पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर आप सकारात्मक सोच रखेंगे तो आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। सकारात्मक सोच के जरिए आप अपने जीवन में आसानी से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इस चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने बारे में क्या राय रखते हैं, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। विवेकानंद जी के विचार और कार्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत की तरह काम करते हैं। उनके विचारों को पढ़ने से युवाओं के अंदर कुछ हासिल करने की उम्मीद पैदा होती है, क्योंकि आज के समय बहुत से युवा नशाखोरी के आदी होते जा रहे हैं। इसलिए उनके विचारों को हर स्कूल की दीवार पर लिखा जाता है ताकि उनको पढ़कर बच्चे अपने जीवन का लक्ष्य तय कर सके। इतना ही नहीं, हर स्कूल में कॉलेज में उनकी तस्वीरें भी लगाई जाती है ताकि नई पीढ़ी को पता चले कि आखिर कौन थे ये महान व्यक्ति जिन्होंने दुनिया भर में भारत की एक अलग पहचान कायम की थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। परम श्रद्धेय प्राचार्य जी, उप प्राचार्य जी, विद्वान शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, उत्तिष्ठतः जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अर्थात उठो जागो और अपने लक्ष्य की ओर तब तक बढ़ते रहो जब तक कि उसे प्राप्त न कर लो के उद्घोषक भारतीय सभ्यता और संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित करने वाले वेद ज्ञाता विश्व गुरु स्वामी विवेकानंद के अवतरण दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बच्चों, स्वामी विवेकानंद का जन्म विश्वनाथ दत्त एवं माता भुवनेश्वरी देवी के घर में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र बचपन से ही अत्यंत शरारती एवं कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला, साहित्य, समस्त वेद वेदांतों के अध्ययन के साथ शारीरिक सौष्ठव नरेंद्र के शौक थे। मां काली के परम भक्त स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में नरेंद्र को अपने भावी जीवन के लक्ष्यों का बोध हुआ और यहीं से प्रारंभ हुआ नरेंद्र नाथ दत्त के स्वामी विवेकानंद बनने का सफर। प्यारे बच्चों, उनकी गुरु भक्ति, कुशाग्र बुद्धि, शारीरिक सौष्ठव, देशभक्ति, वाणी का तेज और ओज, भारतीय संस्कृति और अध्यात्म में रुचि, जोश, कठिन परिश्रम, कष्टों को सहन करने की शक्ति, विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने की प्रवृत्ति हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। मात्र 30 वर्ष की आयु में ही शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित कर उन्होंने संपूर्ण विश्व को अपनी प्रतिभा से चकित कर दिया। वे महज 39 वर्ष की आयु में ही दुनिया छोड़कर चले गए। आज उनके जन्म दिवस पर हमें उनसे यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि आत्मनियंत्रण कर हम जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। बस हमें अपने लक्ष्यों की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, हमें स्वयं पर विश्वास हो और हम प्रत्येक परिस्थिति का डटकर सामना करें। मत डर अंधेरों से कि मिलेगी रोशनी जो इंतजार में है, मिलेगा किनारा हौसला रखना, क्या हुआ जो कश्ती मझधार में है। प्यारे बच्चों, इस देश का भविष्य आप हैं। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, रिश्वतखोरी, अपराध और आतंक के दलदल में आज दया, धर्म, सत्य, न्याय, ईमानदारी जैसे शब्द बेमानी हो गए हैं। हर व्यक्ति बस केवल अपना कार्य निकलवाना चाहता है। आज माँ भारती चीख चीख कर करुण क्रंदन कर रही है।
कौन है जो युगों युगों से उठती रोती सिसकती माँ भारती की पुकार सुनेगा? मेरी आशा की किरण है आप, इस देश की युवा शक्ति। स्वहितों से ऊपर उठकर अपने देश और समाज के हित के लिए ईमानदारी से कार्य करके ही आप इस राष्ट्र को पतन के गर्त में जाने से रोक सकते हैं। अस्तु, राह की कठिनाइयों से भयभीत हुए बिना निर्भय होकर अपने कदम माँ भारती की सेवा के लिए आगे बढ़ाएं। यह अरण्य जुर्मुट जो काटे, अपनी राह बना ले, कृत दास्य नहीं किसी की, जो चाहे अपना ले। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर, जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। अस्तु, आप सभी विवेकानंद हो जाएं, ऐसी मेरी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने, जैसे देवल साहब ने और गुलजार जी ने और साथ ही हमारे वरा जी ने विस्तृत जानकारी दी, तो निश्चय ही हमें जो है इनके प्रेरणाओं को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनके जो है कम समय यानी कि उनका बहुत लंबी जिंदगी नहीं रही। 39 ईयर्स तक उन्होंने जो अपने जीवन काल में जो अच्छे आयामों को प्राप्त किया, आज अपने देश में नहीं विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इनके आयामों को जो है जाना जाता है और उसकी अनुपालना करते हैं। और हम तो विशेष तौर पे जो हमारे स्वामी जी के मार्गदर्शन और उनके द्वारा दी गई प्रेरणाओं को हमें अपनाना और हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं, शिक्षक के नाते हमारे जो शिष्यों को, हमारे विद्यार्थियों को ये प्रेरणा देनी चाहिए, ताकि हमारे देश की आने वाली पीढ़ी उन के आयामों को, उनके दिए गए मार्गदर्शन को जो है वो समझे और आगे हमारे देश को प्रगति और उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सके। तो मैं एक बार उनके जो इस दिन के लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही जो है उनके जन्म दिवस की युवा शक्ति के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हम सभी आज एक अपील करते हैं और एक हम सीख लेते हैं कि हमें इनके मार्गदर्शन को आगे बढ़ाना है। तो इनके लिए मैं आगे आने वाले पीढ़ी को भी हम जागरूक करेंगे, इसी प्रेरणा के साथ जो है आपसे आह्वान करता हूं और मैं भी उम्मीद करता हूं हम इनको आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद।